اور روایتی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو کے لوکل کمیونٹی کے ساتھ جو پاکستان کا ایک روایتی ملنساری کا اب مہمان نوازی کا اور ان تمام لذیذ خوشنما کھانوں سے ان کی تواضع اور پاکستان کی ایک پیسفل دھرتی کا ترانہ گانے کا اس سے بہتر اور کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہو سکتا، جس کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ساؤتھ پنجاب کے اندر بسنے والے ہمارے ان قیمتی نگینوں نے نہ صرف اس ریلی کو کامیاب کرانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا، بلکہ اس ریلی سے جڑے جو روزگار کے مواقع، جو مارکیٹنگ جو ہماری انٹرنیشنلی اس ریلی کے ساتھ جڑی ایک امیج بلڈنگ، اور وہ تمام ہمارا جو ایک قوم کا اصل حقیقی ثقافتی ورثہ ہے اس کو اجاگر کرنے میں مدد ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں جس ڈبل ڈیکر بس کا افتتاح کیا گیا، اور وہ بس جو ہے وہ ایک سیاحتوں کو پاکستان کے ان سیاحتی مقامات تک لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ بین الاقوامی سطح پہ دلوں کو جوڑنے کا باعث بنے گی، اور جو کنیکٹیوٹی ہے، جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، اور جو ٹورزم کا ایک وزیر اعظم کا ویژن ہے، اس طرح کے عوام دوست جو منصوبے ہیں وہ اس خواب کو تعبیر دینے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آج ماڈل سستے بازار کا بھی وہاں انہوں نے وزٹ کیا، مہنگائی ایک چیلنج ہے، اور موجودہ حکومت سب سے بڑا اپنے لیے اگر کوئی درد سر سمجھتی ہے تو وہ مہنگائی ہے، اور اس درد سر سے نجات پانے کے لیے جو ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ایک مؤثر حکمت عملی ڈیجیٹل پنجاب سے جو جڑی ہے، اور پھر ڈیجیٹل پاکستان کا جو وزیر اعظم کا نعرہ ہے، جہاں آپ کی ڈیجیٹلائز آن لائن مارکیٹنگ کو ہم انشور کر رہے ہیں، وہاں ڈیٹا بیس ایک ایسا الٹرنیٹو روڈ میپ جو مارکیٹ کمیٹیوں کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے، جہاں پہ آڑتی دکاندار اور کسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کوششوں کو تقویت دینے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ قوم سے وعدہ تھا کہ ہم نظام کو بدلیں گے، تو جو 73 سال سے یہ غلہ منڈی کا، سبزی منڈی کا اور اوورآل ہمارے دکاندار اور گوداموں تک کا جو سٹرکچر تھا، اس کا عوام کو فائدے کی بجائے چند افراد کو وہ فائدہ جو ہے پہنچانے کا وہ نظام محرون منت رہا، اور چند مٹھی بار عناصر وہ ذخیرہ اندوز ہوں، وہ آپ کے ملاوٹ خور ہوں یا نجائز منافع خور ہوں، ان سب نے گٹھ جوڑ کر کے جس طرح کسان کا استحصال کیا، کیونکہ ایک چیز کسان منڈی میں لے کے آتا ہے اور وہ اگر 100 روپے میں خریدی جاتی ہے، کوئی بھی اس کی اناج سبزی کوئی کسی بھی طرح کا کوئی پھل یا اس کے ساتھ جڑی پروڈکٹ اس کی کوئی بھی ہے، تو جب وہ
कंज्यूमर तक पहुंचती है, काम सारफ तक पहुंचती है, तो वो 200 रुपए की होती है। उसके दरमियान में जो 100 रुपया मिडल मैन कमाता है वो अनरेगुलेटेड है, क्योंकि ना वो आड़ती जो है वो आपको टैक्स देता है, ना वो मिडल मैन जो है वो उसका कहीं डॉक्यूमेंटेड है प्रॉफिट। तो एक मंडी से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने में, एक मैं मिसाल दे रही हूं, तो अगर 100 रुपया किसी एक की जेब में जा रहा है और उसका फायदा ना किसान को पहुंच रहा है ना सारफ को पहुंच रहा है, तो अंधेर नगरी है, उसका खात्मा करें और रेगुलेशन को इंश्योर करें। एक इफेक्टिव कानून साजी और अल्टरनेटिव प्रोग्राम ही हमें इस क्राइसिस से निजात दिला सकता है। और वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बहावलपुर जैसे दूर दराज इलाकों में विजिट करके चोलिस्तान के उन रेगिस्तानों में जाके जो तरक्की का शाही खानदान का वतीरा सिर्फ जाती उम्रा तक महदूद था और जाती उम्रा के अंदर सिर्फ तरक्की की रेल पेल दिखाई देती थी, उस जाती उम्रा की स्टेट से निकल के रेगिस्तानों में, पसमानदा इलाकों में, उन तमाम पिसे हुए तबकात के दरमियान खुद जाके उनकी मुश्किलात का जायजा लेने का और उसके तदारक के लिए जो हिकमत अमली वाज़ह की है, ये अपनी मिसाल आप है। यही वो सोच है, यही वो फिक्र है जो अपोजिशन को बेसकून किए हुए है। यही वो असल तकलीफ है और दर्द है कि अगर वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार आवाम के दुखों का मदावा कर गए तो हमें चूरन बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं बचेगी। तो लिहाजा इस हुकूमत को जितनी जल्दी हो सके घर भेजा जाए। ये वो ख्वाहिश है जिसकी बुनियाद पे ये पीडीएम का मतंजन इकट्ठा हुआ। इमरान खान साहब की तदब्बर, मौसर सियासी हिकमत अमली और इनको खुल के खेलने का मौका देने की जो स्ट्रेटजी थी वो रंग लाई। तो आज जो इस्तीफे देने की बातें कर रहे थे वो निडाल और बेहाल, और जो अदम एतमाद लाने की बातें कर रहे थे वो आज जो हैं वो जो उनके माशाल्लाह से कोच थे वो रिटायर्ड हर्ट होके ऑलरेडी लंदन बैठ गए हैं, और जो उनके कप्तान के लाते हैं वो अनफिट होके लाड़काना जा बैठे हैं। तो लिहाजा जो मैच खेला जा रहा है सियासत की ग्राउंड में, उस मैच के अंदर टॉस इमरान खान ने जीता था और उन मेरे नादान खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रही कि जो कप्तान टॉस जीतता है उसे बैटिंग करनी है या फील्डिंग करनी है, ये भी फैसला उसने करना होता है। और जो इस वक्त कप्तान सेनेट के अंदर अपोजिशन को बार बार बावर कराने में मसरूफ़ अमल है कि ओपन बैलेटिंग के जरिए आप इस अदारे की साख को मजरूह होने से बचाए। इस अदारे का जो वफाकी इकाइयाँ सारी को इकट्ठा करने की छतरी है, उसका तकद्दस पमाल होने से रोकें। तो उनको नहीं समझ आ रही, तो आवाम गवाह हैं कि इस मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और आज़ादाना मुनसफाना इंतखाब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या चाहती है और पीडीएम के अंदर जो इस वक्त चूं-चूं का मरबा है वो क्या चाहता है। लिहाजा उसी बाकियात में से
एक जाली राजकुमारी कल सियालकोट तशरीफ लाई थी और पूरी कौम ने देखा कि एक करोड़ों वोटों का और करोड़ों आवाम की नुमाइंदगी का दावा करने वाली जमात जो है वो सर्दी से नहीं सुकड़ी, वो अपनी कारस्तानियों की वजह से सिमट कर सुकड़ कर सड़क के एक किनारे तक महदूद हो गई। और कल उसने जो जलसा किया और जिसके अंदर जो है वो वारिस शाह के जैली हीर सुना के जिस तरह से अपने जैली होने की सनत वसूल की कि जिसको नहीं पता कि ये वारिस शाह का कलाम नहीं है, ये हिंदुस्तानी शायरा अमृता प्रीतम ने वारिस शाह के लिए लिखा था। तो वो जिनको आवाज़ें लगा रही थी और जिस तरह कोर्स में गा रही थी, बदनसीबी है इस कौम की कि वो मिरात याफ्ता खानदानों की औलादें जिन्हें ये नहीं पता कि अंडे किलों में बिकते हैं या दर्जनों में, और दर्जन में 8 अंडे होते हैं या 12, जिनकी औलादों को निचली सतह के बुनियादी मसाइल का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो आज इस कौम को गुमराह करने के लिए अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए वावेला करने में मसरूफ़ अमल है। मोहतरमा को कल के जलसे में जिस तरह अहलियाने डस्का ने मुस्तरद किया और ये पैगाम दिया कि यहाँ एक शाह हो या डबल शाह, डस्के के अवाम जो है चोर और उनके सहूलतकारों के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते, और जहाँ जगह जगह से बानमती ने वो कुनबा जो इकट्ठा किया कल डस्का में लाने के लिए